بڑی خاص شخصیت یہاں پر موجود ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے بنائی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے سوچا اس ٹرانسمیشن میں بہت ساری ہم چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورت سی چیز ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد حسین شیپا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی رابعہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کچھ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم احساس رمضان کے اس گھر میں. اب کیا انٹرسٹنگ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایپ بنائی ہے اسلام 360 کے نام سے. اب یہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں مختلف دین سے ریلیٹڈ جو ہے اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاتھ میں فون اور ٹیبلیٹس آئی پیڈز آ گئے ہیں تو ہم اسی میں لگے رہتے ہیں, تو کسی اور فضول کام میں پڑھنے کے بجائے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اس ایپ کو استعمال کریں. اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اس ایپ کو استعمال کریں. بتائیے گا مجھے زاہد صاحب کیا کیا چیزیں اس ایپ میں جو کی جا سکتی ہیں؟ اب بیسیکلی رابعہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہوتا تھا اس کو اگر میں اس میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا تھا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اچھا, اب بچہ زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے, پوچھتے ہیں بابا جان کہاں لکھا ہے ذرا دکھائیے. آپ نارمل اگر قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو یہ ذرا دیکھیے, میں یہاں پہ سورہ بقرہ اس وقت میں نے اوپن کر لی ہے. اب میں کسی آیت پہ اوپر کلک کرتا ہوں, یہ سب کچھ وداؤٹ نیٹ کے چلے گا سوائے آڈیو کے. آڈیو کے لیے آپ کو انٹرنیٹ ایک دفعہ چاہیے ہوگا وہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے کلک کیا اور جب میں اس کو پلے کرتا ہوں سبحان اللہ, آپ اس آیت کو اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹ کر دیجئے. یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. جب تک آپ چاہتے رہیں گے یہ آیت چلتی رہے گی. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جھوٹ کے متعلق سرچ کرنا تھا. ٹھیک ہے, علماء کرام لیکچر دیتے ہیں, اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. جیسے آج کا ہمارا کوئی موضوع اور ہم جھوٹ پر بات کر رہے ہیں تو وہ ہم کس طرح سرچ کریں گے؟ آپ کیا تو انگلش میں لائے لکھیں, لائے, اردو میں جھوٹ لکھیں, رومن میں جھوٹ لکھیں, ہندی میں لکھیں یا عربک میں کذب لکھیں, ٹرکش میں لکھیں, نیپالی میں لکھیں, ملے میں لکھیں. تو کتنی لینگویجز ہیں اس میں؟ اس وقت 8 زبانوں پہ کام کر چکے ہیں, یعنی موجود ہیں اس میں. ویسے 19 زبانوں پہ کام ہو چکا ہے. یہ میں نے یہاں پر آ کے ٹائپ کیا ہے جھوٹ. ٹھیک ہے, اگر میرا کیمرہ اس کو دکھا سکے تو میں یہ جی بالکل دکھا رہے ہیں سب کچھ. یہ میں نے جھوٹ سرچ کیا اور جھوٹ کے متعلق کہ میں بھی دیکھ سکوں. جھوٹ کے متعلق یہ 52 آیتیں ہیں حضرت جو اس وقت یہاں پر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ رومنائز اردو مجھے دکھا رہا ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھنا ہے اس کی اردو پڑھنی ہے. آپ اردو پہ کلک کیجئے تو وہ پوچھے گا اردو کس مکتبہ فکر کی پڑھنا چاہیں گے. وہ چاہے اہل تشیع ہوں, اہل سنت والجماعت ہوں, اہل حدیث ہوں, تمام فقہ جو ہیں وہ اس میں اتحاد بین المسلمین ہو سکے. اس لیے تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن میں غلام رسول سعیدی صاحب بھی موجود ہیں, اس میں کنز الایمان بھی اور باقی ساری بھی موجود. ٹھیک ہے, یہ میں نے کلک کیا. آپ اس کو سننا چاہتے ہیں سنیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا, زبردست, اور سبحان ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب. کتنا وقت لگا آپ کو اس کو بنانے میں؟ حضرت مجھے 11 سال لگے ہیں. سبحان اللہ, جی الحمدللہ, زبردست. آپ نے 11 سال لگا دیے اس ایپ کو بنانے میں. آپ کو کوئی کوآپریٹو کوئی لوگ تھے مل کے یا آپ اکیلے؟ نہیں حضرت, میں یہ تو برین چائلڈ تو میرا ہی, میں پیورلی 21 سال سے پروگرامنگ کر رہا ہوں. میں کراچی میں اپنی IT کمپنی چلاتا ہوں. یہ تو اپنے اور اپنے اما ابا کی بخشش کے لیے ایک کام تھا جو کہ شروع کیا الحمدللہ. آج یہ دنیا کی نمبر 3 رینک کی سب سے بڑی ایپ ہے الحمدللہ. اور اس وقت کتنے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں زاہد بھائی؟ 53 لاکھ ڈاؤن لوڈز ہیں, 55.3 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں. اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے کہا کہ میں نے یہ بنائی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے تو ثواب ڈائریکٹلی جا رہا ہے. ربی, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ یہاں پر رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں اس کی تفسیر دیکھنا تو آپ یہاں پر یہ تمام مکاتب فکر کی تفاسیر موجود ہے. اس میں تبیان القرآن فی ظلال القرآن, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن, یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ موجود ہیں. ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف النحو کی اگر بات کریں, علماء بیٹھے, میں اگر ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں, قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں, یہ کیمرہ دکھائے گا کہ ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری اس وقت آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے. یہ آپ نے مجھے اس ٹرانسلیشن سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا. بہت ساری چیزیں, میں تو روز کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس پر میں اس میں پڑھ سکتی ہوں ساری چیزیں. یہ تو پڑھ سکتی ہیں, بلکہ ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میری ڈرائیونگ کے دوران میں میری بات کو ریکگنائز کرے اور پھر مجھے کوئی آئے ڈھونڈ کے دے. ذرا دیکھیے گا. سبحان اللہ. یہ میں نے کلک کیا اس پہ, الحمدللہ رب العالمین
फसी भाई बराबर में बैठे हैं, बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की 7 आयतें ये सब की सब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। माशाल्लाह, और स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं, और जबरदस्त। एक इवन मजे की चीज ये, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जी। कभी मेरे और आप जैसे आम लोगों जी। के लिए, वो तो उलमा हजरात हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं और आप जब हमारी तजवीद खराब हो जाती है, जरा देखिएगा कि हमारी तजवीद को बेहतर करने के लिए इसमें क्या सिस्टम मौजूद है। जी, बताइए। मैं इसको पढ़ूं, ये जरा देखिएगा। मैंने कहा इसको पहले सुनाओ कि कैसे पढ़ते हैं इसको। ऐसे पढ़ना है। ठीक है। अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा, जरा देखिएगा। अच्छा, लम यलिद वलम यूलद, ये रिकग्नाइज कर Red रहा हो है गया। जी, रिकग्नाइज कर रहा है, और ये स्क्रीन पे देख लीजिए इस वक्त ये रेड हो चुका है। क्योंकि आपने इसको अल्लाह समद की बजाय मैंने लम यलिद वलम वलम यूलद यूलद पढ़ लिया। अब फसी भाई इसको अल्लाह समद पढ़ेंगे, फिर जरा देखिएगा। फसी भाई पढ़िए आप माइक में। अल्लाहुस्समद। ये जरा स्क्रीन पे दिखाइए कि फसी भाई ने अल्लाह समद पढ़ा है, वो ग्रीन हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो Even- ये तो बच्चों के लिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। Very इवन यही नहीं, इसमें 78,000 अहादीस मुबारका का डेटा भी मौजूद है। अच्छा, पूरी कुतुब सित्ता, मैंने सही और बुखारी क्या हम अहादीस के भी जो टॉपिक्स होते हैं वो सर्च कर ईच सकते एंड हैं? एवरीथिंग। अब जरा देखिए ना, जबरदस्त। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं उर्दू में नमाज के मुतालिक। ये मैंने नमाज लिखा, स्क्रीन पे ये दिख जाएगा आपको, ये नमाज मैंने लिखा, सर्च का बटन दबाया, नमाज के मुतालिक 4 सेकंड में जो ये हदीस ढूंढ के लाया वो क्या आप 8,405। एतिकाफ लिख सकते हैं उससे बिल्कुल मुतालिक? लिख सकते हैं आप एतिकाफ। लिखिए ताकि एतिकाफ से मुतालिक हम देखें क्या ये हदीस मैंने है। कहा कि एतिकाफ के मुतालिक कुरान मजीद में, ये अहादीस मुबारका में जी, सारी कुतुब में 142 रिवायतें हैं, जिसमें सही बुखारी की हदीस नंबर 301, सही बुखारी की हदीस नंबर 309, 310, 311, सही बुखारी की हदीस नंबर 813, ये सब की सब एक ही जगह मौजूद है। अब यहाँ अंदाजा कीजिए जाहिद साहब, वो लोग जब ये नहीं था तब वो याद उन्होंने रखते तैयार थे। करके हमें दी, हम उनको सलाम करें या सलाम ना पेश करें। करते हैं उन्हें। जबरदस्त। आज जितने लोग इस वक्त घर में देख रहे हैं, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से कि आप इसी वक्त इस्लाम 360 इस्लाम 360 आपके एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, जी, एप्पल पे अवेलेबल है, दोनों पे available। ठीक है, तो दोनों पर ये अवेलेबल है, यानी गूगल प्ले या एप्पल स्टोर, दोनों पर आप जा सकते हैं। इस्लाम 360 आप कीजिए। मेरे वालिद साहब तो पूरा दिन यही सारी चीजें देख रहे होते हैं Even किसी आप- ना किसी तरह। सॉरी आपकी बात मैंने काट बल्कि दी, मैं अभी करती हूँ क्योंकि मैं कुछ और चीज आपको बताने चाह रहा बताइए, था। और मैं आपसे बात करते करते अपने एप्पल स्टोर पे इसको। हजरत, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, जो लोग देख नहीं सकते, वो क्या करें? ओके इस्लाम, दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? सुभान अल्लाह। तर्जुमे के साथ। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, रबी यही नहीं, एक और मजे की चीज देखिएगा, उलमाए किराम को याद किया जी, आपके लिए। मुझे लग रहा है कि अब अलामा साहब और मुफ्ती साहब घर जाकर सिर्फ यही करेंगे आपकी अब एक ऐप चीज से। देखिए आप। जी, ओके इस्लाम, दोस्तों के साथ बहस हो रही है, हदीस में तलाश कर दोगे? आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? सही बुखारी, तिरमजी, आप सुनन तिरमिजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। नमाज के मुतालिक कैमरा दिखा देगा इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर 453 रिवायतें हैं जो कि नमाज के मुतालिक इसका स्क्रीन पर आ रही माशाल्लाह, हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये तो आपने देखा कि ये ऐप कितनी मेहनत से बनाई गई है और इसके क्या क्या फायदे हैं। मुझे ये बताइए लेकिन- जी, इससे जहाँ फायदा है, बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी बिल्कुल ऐसा। हजरत उलमाए कराम ही इसी का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम उलमा, तमाम मकातिब फिक्र के, उसमें हजरत तकी उस्मानी साहब हों, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, या इसके अलावा अल्लामा हसन रिजवी साहब हों, इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकातें हो चुकी हैं।
उन तक से लेके सऊदी अरब के तमाम उलमा को दिखा के सर्टिफिकेट भी मौजूद है। मेरे ख्याल नहीं, में कि जो आपकी समझने के लिए समझने जरूरी के लिए, है। जी जी बिल्कुल, बगैर उस्ताद वो के इसका तो नुकसान वो भी तो बहुत। हम जब अल्लामा साहब कुरान पाक को भी तफसीर से पढ़ते हैं तो मेरे लिहाज से कि उलमाए कराम की हमें ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारी अकल में नहीं आ रही होती हैं, वही बता सकते हैं। इस्लाम 360 का नाम आपने रखा क्यों? अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। इसमें कुरान और हदीस दोनों मौजूद हैं। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूलिही, ठीक कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। इसको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो दोनों चीजें इसमें मौजूद थी। इस वजह 360 एंगल मुकम्मल हो जाता है, सर्किल 360 डिग्री जी। पर। तो इस वजह से इसका नाम इस्लाम 360 रखा। जबरदस्त, रबी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक हमारे बात नाज़रीन आपको के लिए। और बता दूं, जी जी 363 प्लस 6 कितने हुए? 360 प्लस 3 प्लस 6 Nine। 9। 9 का अदद कभी खत्म नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको मालूम है? नहीं हजरत मेरे, आप 9 का टेबल पढ़िए। 9 1 9, 9 2 18, 9 18 8 प्लस 1 9 और उसके बाद 27। 7 प्लस 2 माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी 36। खत्म नहीं वाह होगा। वाह वाह। 9 वेरी गुड। अच्छा, मुझे अब मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहती हूँ। ज़ाहिर ने अपने वालिदैन के लिए इस ऐप को तरतीब दिया और 11 साल लगाए इसमें, तो हम कितना हमें ज़रूरत है, हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं, कितना सवाब है ऐसी चीज़ें बनाने का जिससे लोगों को फ़ायदा हो। सदका जारिया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, सदका जारिया भी फिर ऐसा कि जिसके अंदर इन्होंने पूरा कुरान करीम, फिर उसमें मुफस्सिरीन, अरब, अजम, मसालिक और फिर अहादीस सियासता कि वो सारा दरिया कूजे में बंद करने की मिसालें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन इन्होंने कर दिया। और माशाल्लाह इस ऐप से मैं पहले भी मुतारिफ हूँ। जब इन्होंने इसको लॉन्च किया था तो इतने यानी हज़ारों मेरे पास मैसेज आ रहे थे इस चीज़ के, और लोगों के अंदर अच्छाई का जज्बे माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और तरक्की और कामयाबी दे। ये सदका जारी तो वो सदका जारी है कि जिसमें इन्होंने समझे कि एक उम्मत के लिए काम किया है, सिर्फ एक घर के लिए नहीं, ये पूरी उम्मत की तरफ से समझिए। हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारे जमाने में, हमारे अहद में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जबरदस्त पाकिस्तानी है जाहिद हुसैन साहब, इनके लिए बहुत सारी तालियां। जी बिल्कुल यही वाली ऐप। यही वाली ऐप। एक बात मैं जो अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड नंबर 3 रैंक की ऐप है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कराची में अपनी IT कंपनी चलाता हूँ। जाहिद हुसैन छिपा ठेले पर केले बेचा करता था, और मैं केले बेचते बेचते आज जियो नेशनल टेलीविजन पर आपको आके इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। We are proud of you जाहिद साहब। पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है, और मैं चाहती हूँ कि ये नंबर 3 नहीं, ये नंबर 1 ऐप बन जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरे जितने इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, मैंने यकीन मानिए कि ये कर लिया। ये देखिए, मैंने अपने फ़ोन में इसको, ये मेरे पास आ गई है ऐप, ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग आगे बढ़ें। इस ऐप को एक पाकिस्तानी ने इस ऐप को बनाया है, मेक इट नंबर 1, और ये बड़ी आसान सी बात है। कितने और लोग चाहिए आपको नंबर 1 बनने के लिए? और नंबर 1 बनने के लिए अभी हम 177 कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गूगल की इस वक्त की रिपोर्ट है, लास्ट मंथ के लास्ट 28 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्क्रीन व्यूज की तादाद है वो 11 करोड़ 90 लाख है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। इसको हम नंबर 1 बना लेंगे इंशाल्लाह। अगली ट्रांसमिशन में जब आप आएंगे तो आप मुझे कहेंगे कि केले बेचने वाला जाहिद हुसैन आज नंबर 1 ऐप बना चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ हिम। नाज़रीन किराम, ये हैं हमारे वो लोग जो हमारे लिए बहुत, हमें फख्र है इन लोगों पर, और आप भी कोशिश कीजिए। हम हमेशा कहते हैं हमारे नौजवान को मौका नहीं मिल रहा कुछ काम करने का, जो करना चाहते हैं वो अपने बलबूते पर ये काम करते हैं। अपने वालिदैन के लिए इन्होंने किया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ऐसा काम करें, अल्लाह उन्हें ऐसे बच्चे दे वाकई जो इतने टैलेंटेड हों, अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ करके दिखाएं।